عبدالرحمان میٹھانی صاحب موجود ہے جو کہ ہمارے ساتھ روپانی فاؤنڈیشن جو کہ ہمارے سپانسرز میں شامل ہیں، ان کے بارے میں مزید ہمیں عائشہ بتائیں گی۔ جی عائشہ۔ جی ہمارے ساتھ ڈائریکٹر صاحب روپانی فاؤنڈیشن کے تشریف رکھتے ہیں، جو کہ روپانی انیشیٹوز ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ساتھ یہ چل رہے ہیں اور اس میں کافی رفائی کام بھی کر رہے ہیں، جو چائلڈہڈ ایجوکیشن اور پیرنٹل گائیڈنس کے بارے میں بھی ہے، اور رمضان میں اسپیشل ہیلتھ اویئرنیس کا پروگرام بھی کرتے ہیں۔ باقی تفصیلات ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ ہمارے شو پہ تشریف لائے۔ تو اس بارے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ کہاں کہاں کس طریقے سے کام کر رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے دعوت دی، میٹرو ٹی وی کا شکر گزار ہو کہ آپ نے ہمیں بلایا یہاں پہ اور موقع دیا روپانی فاؤنڈیشن۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ اتنے اچھے کام کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں لوگوں کو پتا ہو، تو کیونکہ اس طرح سے جو ہے نا مدد بھی آگے ملتی ہے لوگوں کو، بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں، تو اس لیے ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ کس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ روپانی فاؤنڈیشن 2007 میں پاکستان میں اسٹیبلشڈ ہوئی۔ اس کی ہیڈ آفس گلگت بلتستان سے شروع کیا ہم نے۔ تقریباً ہمیں اس وقت 18-19 سال ہو رہے ہیں وہاں پہ، اور زیادہ تر کام ہمارا گلگت بلتستان کی طرف رہا ہے۔ وہاں پہ ہمارے تقریباً 130 اسکول ہے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ۔ ماشاءاللہ۔ تھوڑا سا ای سی ڈی اور ای سی ای میں فرق ہے۔ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ جو ہے پورے ورلڈ اوور لیس دین 3% ہے، پورے ورلڈ اوور۔ پاکستان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نان ایگزسٹنس ہے۔ تو اس میں ارلی چائلڈہڈ میں کوشش ہم کر رہے ہیں کہ جو 130 اسکولز ہماری گلگت بلتستان میں جس میں گلگت کی تقریباً جی بی کی 10 ڈسٹرکٹ ہے، تمام ڈسٹرکٹ میں ہماری اسکولز موجود ہے، اور یہ پری نیٹ پریگننسی سے لے کے 3 سال تک کے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں، اور یہ جو ہے 2 گھنٹے کی کلاسز ہوتی ہے ہمارے، اور ہم تھوڑی بہت فیس اس لیے چارج کرتے ہیں کہ بچہ کیونکہ بچہ اکیلا نہیں آتا ہے، چاہے وہ کیئر گیور کے ساتھ آتا ہے، اپنی والدہ کے ساتھ آتا ہے، یا نانی یا دادی کوئی بھی اس کے ساتھ، 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، اور یہ تمام جو ہے 2 گھنٹے میں ہم ان کو ایسی چیزیں سکھاتے ہیں کہ بچہ جب وہاں سے نکلتا ہے 3 سال کے بعد، تو وہ اس کو ہم گریجویشن بھی ایک سیریمنی بھی کرتے ہیں۔ اور وہ کوئی بھی اسکول ہو جو نرسری یا پری پرائمری میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا بچہ کمپیٹ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہمارا بچہ 3 سال تک پورا تعلیم یافتہ ہوتا ہے۔ اس کو تمام پھلوں کے نام آتے ہیں، تمام ویک ڈیز پتا ہوتا ہے، منتھس کے نام پتا ہوتا ہے، پینسل ربڑ کیا چیز ہے، جبکہ ایک وہ بچہ جس نے کبھی اس چیزوں کو دیکھا ہی نہیں ہے، وہ کسی اسکول میں ایڈمیشن لینے جائیں گا تو اس کے مقابلے میں وہ کھڑا نہیں رہ سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور میں ایک اور بات کہوں گا، روپانی فرحان بھائی میں موجود ہے۔ السلام علیکم فرحان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج سر سے زیادہ بات ہوگی، کل آپ سے زیادہ ہو گئی تھی، تو آج سر کو ہم نے کیچر کیا، لیکن سب سے ایک بات میں اہم آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسی کے ساتھ محمد ابو بکر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ سے پھر بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، مجھے یہ کہنا ہے کہ روپانی فاؤنڈیشن کا جو مجھے سب سے اچھی ایک ٹاسک لگا، اگر میں عبدالرحمان صاحب کے بارے میں بات کروں تو جب ہم آف ایئر بات کر رہے تھے تو وہ انگریزی میں بات کر رہے تھے، اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ وہ آپ کو سمجھانے کے لیے خالص اردو میں بات کریں، حالانکہ بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے سر کو، مجھے فیل ہو رہا ہے، لیکن آپ جب کوئی انیشیٹو لیتے ہیں کسی کی مدد اور فلاح کا، یعنی یو وانٹ ٹو ہیلپ سم ون، یو وانٹ ٹو ایجوکیٹ سم ون، تو آپ کو اسی لیول پر آ کر بات کرنی ہوتی ہے، جس کی زندہ مثال آج ہمارے سامنے سر ہیں۔ تو سر جی، اس کے لیے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت دیا، اور ساتھ ساتھ اتنے مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ عائشہ یہاں پر موجود ہیں اور خالص اردو میں بات کر رہے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ گلگت بلتستان، اگر ہم کراچی کو چھوڑتے ہیں کیونکہ بہت رورل علاقہ ہے، آئی ایم سوری میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا، لیکن بڑا پسماندہ علاقہ ہے، لوگوں کو سمجھانے میں، ان کو بتانے میں کہ مدر کے ساتھ کیا کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں، ان لوگوں کو راضی بھی تو کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایکچولی گلگت بلتستان میں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اس وقت وہاں پہ جو ایجوکیشن کا لیول ہے وہ تقریباً 97% پلس ہے پورے جی بی میں۔ آل 10 ڈسٹرکٹس کے تقریباً ایریا میں کچھ علاقے تو ایسے جہاں پہ 100% ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے ماں باپ بھی جو ہے، اور سب سے زیادہ اگر پی ایچ ڈی اس وقت ہے، پی ایچ ڈی تو بہت اوپر، وہ سب سے زیادہ جتنے پاکستان میں ہو گئے نا، ایٹ لیسٹ مور دین 50% گلگت بلتستان کے ہو گئے۔ زبردست ہے۔ اس کی مین وجوہات یہ ہے
کہ پسماندہ علاقہ ہے اور جتنے بھی انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہے وہ فرسٹ پریفرنس دیتی ہے ایجوکیشن کے لیے پسماندہ علاقوں کو. ایسا ہی ہے. تو اس میں جب بھی کوئی اسکالرشپس آتی ہے, کوئی ڈونیشنز آتے, تو وہاں کے لوگ تعلیم کی طرف اتنے زیادہ متوجہ ہے یا اپنے طرف ان کا وہ ڈائیورٹ اس کا خیال ہوتا ہے کہ وہاں کے چاہے لڑکی ہو یا لڑکا وہ کہیں بھی پڑھنے جانے کے لیے تیار ہے. جبکہ ہمارے دوسرے علاقوں میں اگر جائیں گے تو بہت سارے علاقے ایسے کہ جہاں پہ ایون لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر بھی ریسٹرکشنز ہوتے ہیں, کوسچن مارکس ہوتے ہیں کہ کیوں پڑھائیں. ہاں, تو وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے. اور وہاں پر اگر آپ کسی وقت بھی آپ دیکھیں تو لڑکی ہو لڑکا ہو کسی بھی ایج گروپ کا ہوگا وہ بالکل آزادی کے ساتھ گھومتے ہیں. وہاں پہ 2 یا 3 تو یونیورسٹی ہے, کاراکورم یونیورسٹی ہے, دوسری ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے, 2 یونیورسٹی ہے. اور وہاں پہ اگر آپ بچوں کی تعداد دیکھیں گے تو کراچی یونیورسٹی جتنے تو نہیں ہے لیکن بہت ہی اچھی تعداد میں, اور وہاں پہ لوگ دل سے پڑھنے آتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ترقی بھی کر رہے ہیں. یہ آپ کی بہت اچھی بات ہے. جی سوری, آگے آپ کا کوئی ارادہ ہے کہ آپ کسی اور علاقے میں بھی اس قسم کے انیشیٹوز لیں گے؟ ہم گلگت بلتستان میں تو ہمارا میجر ہے بنتے, اس کے علاوہ کراچی میں ہماری 12 اسکولز ہے, حیدرآباد اور سندھ میں 10 ہے, لاہور, اسلام آباد اور پنڈی میں 1 اسکولز ہے. چائلڈہڈ کے حوالے سے خالی یہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے, یہ روپانی فاؤنڈیشن کا مین کام ہے. اس کے علاوہ اس وقت ہم ایک روپانی اکیڈمی چلا رہے ہیں جو گلگت میں ہے. روپانی اکیڈمی ہے جو گلگت میں اس وقت کام کر رہی ہے, وہ روپانی انیشیٹوز کے اندر آتی ہے اور وہ آئی بی ایفیلیٹڈ اسکول ہے ہماری. اور وہ آئی بی پاکستان میں گلگت میں تو ہماری خالی پہلی اسکول ہے جو وہاں پہ ہے, اور پاکستان میں 3 یا 4 لوگوں کے پاس اس کا فرینچائز ہے, جس میں ایک ہمارے پاس بھی ہے. تو وہاں پہ بھی ہم جو ہے, اور اسکردو میں خاص کر کے ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ لے کر آئے, لیکن اس کی انیشل کاسٹ بہت زیادہ ہے. تو لیکن اس کے باوجود اب تھوڑا سا کوشش کر رہے ہیں کہ 2 یا 3 سال میں اسکردو میں بھی ایک دوسری اکیڈمی ہم کریٹ کریں. کیا بات ہے, کیا. اچھا, جب اکیڈمی کی بات چل رہی ہے تو کیوں نہ آپ کی فلاح کے لیے ہم بھی بات کریں کہ سر عبدالرحمان مٹھانی صاحب جب آئے تو انہوں نے آتے ساتھ سوری مجھے ایک تحفہ دیا آپ کے لیے, جو کہ سر میں چاہوں گا اناؤنس کر دوں کہ دیکھنے والوں پہ, کہ آپ اگر اناؤنس کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. ہم یہ اس رمضان کی مہینے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جہاں پہ بھی اسکولز چل رہے ہیں اس میں ٹوٹل ہم 10 بچوں کو فری اسکالرشپس دیں گے, جو جس سے کوئی فیس چارج نہیں کریں گے. یہ میں بات کر رہا ہوں روپانی فاؤنڈیشن ECD کے لیے. تو 10 بچوں کے اسکالرشپس دیں گے, جہاں ہر اسکول میں 2 بچے, جہاں جہاں ہمارے لوکیشنز ہے, جو تقریباً اس وقت 160 کے قریب لوکیشنز ہے جہاں پہ کام ہے, جہاں پہ بھی وہ ہوگے ان کو ہم انشاءاللہ. یہ رحمت سحر کو آپ دے رہے ہیں, یعنی نور سحر کو آپ یہ تحفہ دے رہے ہیں. تو آنے کا فرحان بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ ذیشان بھائی آپ کے لیے ایک تحفہ ہے, اور اس سے بہتر تحفہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے بچوں کو پڑھائیں. ایک بچہ بھی پڑھ گیا, معمار بن گیا, تو پاکستان انشاءاللہ ضرور روشن ہوگا. اور جو کہ روشنی کی طرف روپانی فاؤنڈیشن ایک وہ مشعل ہے یا وہ لائٹ ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کی سمت میں ہم چلیں تو کامیابی ہماری ضمانت ہوگی انشاءاللہ. اچھا فرحان بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ سر نے جیسے بتایا کہ گلگت بلتستان میں ہے, تو آپ نے بھی مجھے بتایا تھا کہ وہاں رہش و تعلیم کا بہت زیادہ لوگ آ کر بولتے ہیں. تو کراچی کے جو کچھ ایسے رورل علاقے ہیں, کیونکہ کراچی میں بھی کافی سائٹس ایسی ہیں جہاں پر ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ میری بچی کو تعلیم کا کیوں بولا, وہ کیوں جائے گی باہر پڑھنے, تو ایسے لوگ آتے ہیں, ملتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کے چیلنجز ہمارے پاس سامنے ہمارے لے کر آتے ہیں. لیکن میں ان چیلنجز کو ہائی لائٹ کرنے کے بجائے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بچی کی مثال دوں گا جو کہ ہزارہ ایتھنک سے بلانگ کرتی ہے. اور مجھے اسپیشلی وہ بچی اس لیے یاد آئی کہ جب بھی میں اس بچی سے ملاقات کرتا ہوں, اس کی عمر میرے خیال سے کوئی 11 یا 12 سال کے آس پاس ہوگی, اس سے زیادہ کی نہیں ہوں گے. اور اس کے والد جو ہے وہ رکشا چلا رہے ہیں, اور وہ اسی مینٹیلٹی کے پہلے قائل تھے کہ میری بیٹی کو گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہیے پڑھائی کے لیے. سم ہاؤ اسے ہمارا ایکسپوجر ملا, اور کسی طریقے سے بھی اس کی والدہ نے یا اس کے پیرنٹس نے کسی فارم میں بھی سپورٹ کر کے اس بچی کو ہمارے پاس آنے دیا. آج اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ بچی اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر آتی ہے ہمارے پاس,
बतौर माँ की हैसियत से, जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। ठीक है। और डेली वो हमारा जहाँ जहाँ पे भी मोबाइल ईसीडी का तरक जाता है वहां पे ये हमेशा मौजूद होती है। क्या बात है। क्या बात है। और इसके साथ साथ जब मेरी उससे पहली मुलाकात हुई तो उसने मुझसे कहा कि मैं कंप्यूटर सीखना चाहती हूँ और मैं भी टीचर बनना चाहती हूँ। अरे वाह। तो मुझे ऐसा हुआ कि पता नहीं, आज बोल तो रही है, बहुत सारे बच्चों के दिलों में ये ख्वाहिशात तो होती है, लेकिन देखे कि कितना आगे बढ़ना चाहती है, थोड़ा पता तो चले कि अंदर स्पार्क क्या है, आगे बढ़ना भी चाह रही है या ऐसे ही शुरू में अगर हर चीज प्रोवाइड कर दी जाए तो फिर वो नहीं हो सकता पॉसिबल। तो मैंने उससे कहा कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अगर आप मुझे एक बात बताएं कि इस इलाके के अंदर और कितनी बच्चियां हैं जो इस तरह के कोर्सेज को लर्न करना चाहती हैं। तो कहा 3 से 4 तो हैं जिनको मैं जानती हूँ, मेरी सहेलियां भी हैं। मैंने कहा ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ, आप मुझे 7 लड़कियां कर दें। अच्छा। ये मेरा प्रॉमिस है, मैं खुद आके यहाँ पे कंप्यूटर सिखा के जाऊंगा। क्या बात है। उस बच्ची ने मुझे 10 बच्चियां कर दी। जबरदस्त ये जबरदस्त देखें, एक जबरदस्त। को आपने एजुकेट किया, उसके जरिए देखें। तो यही तो मुझे यहाँ पे फील होता है कि जहां इतने चैलेंजेस है ना, मैंने कल भी आपसे शायद यही बात की थी कि खुदा आसानी निकालता है, जब आपकी नीयत साफ है तो मंजिल आसान है। कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा होती है। वेलकम बैक। और आज जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज दूसरी सहरी है और अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम सब माह रमज़ान के मुकम्मल रोज़े रख पाएँ। जैसे कि कहा जाता है, अल्लाह कहता है कि जिस्म की ज़कात रोज़ा है और रोज़ा मोमिन को पाक कर देता है, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है। तो अल्लाह पाक हमें सब की तौफीक अता करे। हमारे साथ अब्दुल रहमान साहब तशरीफ़ रखते हैं जो कि रूपानी इनिशिएटिव्स के हेड हैं, डायरेक्टर हैं। तो इनसे मैं एक मज़ीद सवाल करना चाहूँगी कि जैसे कि हम बात कर रहे थे मदर्स और चाइल्ड के एजुकेशन के बारे में, तो आप ये बताइए कि माँ की एजुकेशन पे भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं कि उसको बताया जाए कि बच्चे को किस तरह से ब्रॉटअप करना है। जो हमारी टीचर्स है जिसको हम FSM कहते हैं, फैमिली सपोर्ट मोटिवेटर्स। अच्छा। तो ये हमारी जो टीचर्स होती है, जब वहाँ पे स्पेशली गिलगित में जो माँ आती है वो 20 साल की भी होती है और 70 साल की नानी या दादी भी होती है। अब 70 साल की नानी या दादी जो आती है उसको अलिफ बे भी नहीं आता, ABCD भी नहीं आता। सही। लेकिन वो जब 3 साल तक अपने छोटे बच्चे नवासे या पोती को लेकर आते हैं तो बच्चे के साथ साथ सब चीजें वो सीख जाती है। साइमल्टेनियसली जो हमारी टीचर्स है FSMs, वो इनको बताती है कि बच्चे को कैसे हैंडल करना, बच्चा रोता है तो क्यों रो रहा है, उसको मतलब क्या चीजें जिससे उससे इशारों से पता चल जाए कि इस वक्त इसे भूख लगी है, इसे कोई कहीं पेट में या कहीं दर्द हो रहा है। तो उससे काफी चीजें वहाँ भी सीखती है। और बाकी चीजें हमारे जो दूसरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आते हैं, अच्छा, जो अलग अलग प्रोग्राम्स हम करते हैं, न्यूट्रिशन और कैसे हेल्दी फूड दिया जाए। हेल्दी फूड के ऊपर तो हमारा बहुत ही, फास्ट फूड तो बिल्कुल ही अलाउ ही नहीं करते स्कूल में। हम उनसे, हमारी रिक्वेस्ट हमेशा ये रही है कि आप अपने बच्चे को घर की कोई भी चीज दे, पैक्ड जूसेस न दे। अगर आप जूस पिलाना चाहते हैं तो घर में आप कोई भी फ्रेश फ्रूट, क्योंकि स्पेशली GB में तो फ्रेश फ्रूट बहुत है। हाँ। तो और तकरीबन जिसके पास छोटा एक 100 गज का भी अगर प्लॉट एक दो 5 मरला बनते हैं तो उसमें भी 1-2 दरख्त ऐसे होते हैं या एप्पल के लगे हुए। मैं गई थी माशाल्लाह, स्कर्दू फुल ऑफ फ्रूट्स हर जगह। इस वक्त इस पूरे GB में स्कर्दू, दियामीर, गिलगित, हुंजा, बल्तिस्तान, नगर सब मिलाकर प्यारे प्यारे सेब जो है जगह जगह, अखरोट और वो खुबानी जबरदस्त। वहां पे इस वक्त टोटल चेरीज की जो अच्छा, चेरीज जो है इस वक्त उसकी तकरीबन आप समझ ले कि 8 अरब रुपए की प्रोडक्शन है। वाह वाह। ये 8 अरब की प्रोडक्शन आज से 25 साल पहले जीरो थी। वहां पे चेरीज का कोई कंसेप्ट नहीं था। सही सही। अब 8 अरब की प्रोडक्शन है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ प्रोडक्ट चीजें बढ़ रही है आगे। मेरी पहली विजिट थी गिलगित बल्तिस्तान में 1977 में। ओहो, जो 77 में गया तो 9 रास्ते थे
मुझे जहाँ पे असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट कहलाते थे दूसरे, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि आपकी तनख्वाह क्या है। अच्छा। तो मैंने कहा मैं एज एन ऑर्डनरी वर्कर यहाँ पर आया हूँ। तो उसने कहा कि हम यहाँ पे तनख्वाह याफ्ता है, लेकिन जहाँ जा रहा था गिलगित का जो कोना है वो तेरू है। तो उसने कहा कि वो इलाका मुझे 8 महीने हो गए लेकिन मैंने नहीं देखा। अच्छा। रास्ते का, मैंने कहा रास्ते खराब है ये मुझे पता है, क्योंकि जब जीप टर्न करती थी हम नीचे उतर जाते थे, क्लीनर जो आगे के बॉनेट पर आ जाता था, ड्राइवर चलाता था, जब गाड़ी टर्न हो जाती थी उसके बाद हम जाके वापस जीप में बैठे। इन बड़े अफसोस की बात है, रास्ते अभी भी बहुत खराब हैं सर। अभी कंपैरेटिवली देखो ये जो सिल्क रूट बन गया हमारा, इट्स एज गुड एज सुपर हाईवे, बट लेकिन वो लिमिटेड रास्ते हैं, लिमिटेड है, लिमिटेड रास्ते, लेकिन है तकलीफ। देवसाई वगैरह गए बहुत प्रॉब्लम ये है कि हम कराची कितना डेवलप सिटी, तब भी हम वहां पे इतने खराब है। तो गिलगित बल्तिस्तान में हम देखें इस वक्त हम अगर वहां की बात करें, वाकई में सड़कें अच्छी नहीं होंगी, लेकिन तालीम का रेशो बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा, जो माशाल्लाह आप लोग लेकर चल रहे हैं। रूपानी फाउंडेशन जो आप हमारे स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि मौजूद है। अच्छा जी, एक चीज होती है कि आयशा मैं भी ये कहूंगा कि स्पॉन्सर्स हर कोई चाहता है ना कि स्पॉन्सर्स प्रोग्राम, विदाउट स्पॉन्सर्स प्रोग्राम्स होते नहीं है, लेकिन वो स्पॉन्सर अगर आपके साथ मौजूद हो जो कि बुनियाद जिसकी हो तालीम को आम करना है, तो उसका नाम रूपानी फाउंडेशन है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जब आप जाते हैं, मतलब आउट ऑफ एरिया जब विजिट करते हैं, आप ये देखते हैं कि मदर की आप उनको ट्वीट आउट कर रहे हैं कि कैसे बच्चे को देखना है, और सबसे बेहतर जो मैंने देखा, जो आपकी बुक में मैंने पढ़ा, कि रिफ्लेक्शंस आप बताते हैं कि अगर बच्चा जो है वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो उसको हो सकता है भूख लगी हो सकता है वो आपके ज्यादा पकड़ने से वो इरिटेट हो रहा है, डोंट टच हिम एनीमोर। तो वो चीजें आप जो सिखा रहे हैं बड़ी मार्वलस है। ये तो कोशिश हमारी ये होती है क्योंकि मदर को ट्रेन भी करते हैं, हमारे पास जो ये डॉक्टर्स आते हैं उनसे भी हम गाइडेंस लेते हैं, और हमारी जो एफएसएमसी जो टीचर्स है उनकी बाकायदा एनुअल साल में 2 मरतबा हम उनको पूरा प्रोग्राम को रिपीट करवाते हैं। अच्छा। और उनको अपग्रेड भी करते रहते हैं ताकि हमारे पास तालीम याफ्ता एजुकेटर्स है जिनके साथ साथ हम आगे बढ़ते रहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, जो हमारा ईसीडी सेंटर होता है, एक तो हमारी ईसीडी मोबाइल व्हीकल है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। हमारे उसमें तमाम फ्रूट्स का अपना महीनों के नाम, वीक डेज के नाम, ये सब चीजें वो होती है। एक बच्चा था जिसकी माँ उसको स्पेशली, वो बच्चा स्पेशल चाइल्ड था, उसको वो अपने किसी डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने कहा इसको पूरा माहौल क्रिएट करके दो। उसने अपने घर पे पूरा खर्चा करके वो बना के दिया, लेकिन 1 साल तक उसको बच्चा कुछ भी अडॉप्ट नहीं कर सका। ठीक है। फिर कहीं से उसे ये पता चला कि ये रूपानी फाउंडेशन जो है उसमें ईसीडी में आप ले जाओ तो शायद वहां फायदा हो। सही। 1 महीने में वो बच्चा बोलना सीख गया। मतलब बोलने से मतलब ये कि उसने कुछ अल्फाज बोलना सीखे, और उसने अपने घर का माहौल, उसने कहा, उसकी माँ ने यहाँ के 5 मिनट की पूरी स्पीच की हमारे पास कि 1 साल तक इस बच्चे के पीछे मैंने मेहनत की, लेकिन ये बच्चा को माहौल नहीं मिल रहा था। अब इसको जो 10, 12, 15 बच्चों का माहौल मिला, इसको एक अलग से पूरा एक सिस्टम जो मिला है, क्योंकि वहाँ पे हम ऑडियो वीडियो पे चलते हैं, विजुअल पूरा विजुअल वो होती है, टीवी चल रहा होता है और पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक होता है। तो ये बच्चे को उसने कहा कि ये तमाम चीजें मैंने कोशिश की, लेकिन आज आपके माहौल के साथ जो बच्चे को माहौल मिला है, इससे हमें बहुत ही, ये बच्चा हमारा बहुत आगे बढ़ा है। और मैंने जितना खर्चा किया मैं समझती हूँ कि पूरा मैंने वेस्ट किया, क्योंकि हमारे पास तो मैक्सिमम वो बच्चा अगर अच्छा है तो हम 2000 रुपये से चार्ज कर लेंगे मंथली। तो वो कहता है कि इससे मैंने 5 लाख रुपए इस बच्चे पे खर्च किए, लेकिन ये जो 2000 रुपये का मैंने 1 महीने का दे रही हूँ, उससे मुझे जो एडवांटेज मिला, ये स्पेशल चाइल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मतलब ईसीडी में एडवांटेज मिलता है क्योंकि उसको पूरा माहौल जो ना बच्चों, सेपरेट बिल्कुल उसको तवज्जो दी आपने, या फिर उस जैसे और बच्चे भी थे? नहीं, कुछ बच्चे तो सभी आते हैं ना, तो दूसरे बच्चों को देखकर उसने उसको एडॉप्ट किया, वो दिया कि बच्चा बोल सके। इस माहौल की बात में मैं एक चीज और, अगर आप इजाजत दें तो मैं काम करूंगा कि रूपानी फाउंडेशन, जब भी मैं गया फरहान भाई से मिलने, आप यकीन करें कि बात जल्दी खत्म हो जाती थी, मैं उसको लंबा करता था। अक्सर फरहान भाई ये क्या होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि आपका इवन
ऑफिस का जो एटमॉस्फेयर है वो भी इतना फ्रेंडली और लविंग है कि आपके वो जो पैटीज और चाय है वो तो मुझे अभी भी खैर रोजे आ गए हैं, मैं नहीं, लेकिन आप मुझे भी लेके चलिएगा। इंशाल्लाह जरूर। पेटीज और समोसे। तो बंद करना पड़ता है। और उसके बाद जब फरहान भाई से पूछे ये चीज ऐसे करनी है, तो अगर ये मुझे इतनी हेल्प कर रहे हैं तो आप सोचें कि बच्चे जो कि बुनियाद है उस पर क्यों हेल्प नहीं करेंगे। तो मैं सिर्फ यही वाला मैसेज देखने वालों को दूंगा कि आपकी स्क्रीन्स पर नंबर डिस्प्ले है, आपकी स्क्रीन्स पर अकाउंट नंबर डिस्प्ले है, सर मौजूद हैं आपकी इजाज़त से, कि जो भी चाहता है कि उसका पैसा सही सिमत में इस्तेमाल हो, पढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो, फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल हो, तो रूपानी फाउंडेशन इज़ द वन जिसकी गारंटी हम देते हैं कि बाकी में वो काम कर रहे हैं। ना सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि उनकी तमाम चीज़ें आपको मंजर आम पर नज़र भी आती हैं। आजकल सर मसला ये होता है कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन कहाँ करें वो नजर नहीं आता। आप लोग साफ शफाफ चीजें दिखा रहे होते हैं, आपके जो क्लासेस हो रही होती हैं या वो जो व्हील ऑन स्कूल ऑन व्हील है वो जो आपकी चीजें चल रही हैं, तो वो कहते हैं ना कि ट्रिमेंडस है। और उसको मैं जरूर ये कहता हूँ कि अगर हम मुआजना भी मैं करता हूँ फरहान भाई कि मैंने आपके 2-3 कोर्सेज का मुआजना किया तो डॉलर्स में बहुत कीमत है उसकी, कि जो वेस्टर्न कंट्रियों में सिखाए जा रहे हैं जो कि आप लोग फ्री करवा रहे हैं, तो इसके लिए तो सैल्यूट बनता है आपकी रूपानी फाउंडेशन को। इस वक्त हमारी जो मोबाइल व्हीकल है वो महीने में एक मरतबा यहाँ से निकलती है और 2 हफ्ते 10 दिन इंटीरियर सिंध में जाती है। सही। और कराची में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हमारे स्कूल साइट्स पर नहीं है, तो वहाँ पे मोबाइल व्हीकल जाती है जो एयर कंडीशन ट्रक है जिसमें 16 मदर्स अपने बच्चों के साथ बैठती है और हमारा पूरा इक्विपमेंट्स वहाँ पे लगा होता है। और तो बच्चों को वहाँ पे किट्स वगैरह भी तो कुछ आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूट मतलब जब ओरल हाइजीन के लिए, स्पेशली डेंटल के लिए हम खास करके ये देते हैं। जब कोविड का जमाना आया था तो मेरे हिसाब से तकरीबन 1 लाख के ऊपर हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए थे। कराची में भी, इंटीरियर सिंध में ज्यादा थे और बेसिकली ज्यादा तो जीबी पे थे। वहाँ पे हर लोगों, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को हम हाईवे पे खड़े रहकर नेशनल जो सिल्क रूट है वहाँ पे, अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में जब ये हुआ कोरोना का तो मास्क महंगे कर दिए गए, सैनिटाइजर्स महंगे कर दिए गए, लोगों का फायदा उठाया जाने लगा। वहां पर ये रूपानी फाउंडेशन जो है उन्होंने ये फ्री में जो है किट्स दी, तो इससे बड़ी सलूट की वाकई आप सही कह रहे हैं बात और क्या हो सकती है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्योंकि जब कोरोना आया था सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि फरहान भी आप भी उसी दौर से गुजरे हैं सब, हम कोई अकेले तो हम नहीं गए, तो वहां पर लोग मास्क रख कर भी महंगा दे रहे थे, मतलब नहीं है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इजीली आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब पॉकेट से खरीद के। हाँ बिल्कुल। तो मुझे ये बता कि इजी आपको लग रहा था देना या उस वक्त एक होता है कि नहीं यार इतना महंगा मिल रहा है मैं कैसे दूंगा? नहीं, हम क्योंकि हमने इसलिए बांटे थे कि ये उस वक्त की जरूरत थी। कुछ इलाके, कुछ लोग ऐसे थे इंटीरियर सिंध में भी, कराची में भी और स्पेशली जीबी जैसे मैं कह रहा हूँ कि वहां पे तो हमने ओपनली लोगों के लिए बांटे। कोई हमें, क्योंकि जब मास प्रोडक्शन बनाते हम तो हमें बहुत ही सस्ते पड़ते। ओरिजिनल कीमत आ रही थी 3 से 4 रुपए, जबकि कराची में 10, 15, 20 रुपए में वो 3 गुना 4 गुना प्राइस पे बिक रहे थे। तो हमें कोई मसला नहीं हुआ। और साथ में फिर हम और चीज़ें भी सीजन के हिसाब से, फूड का भी जेनरोसिटी के साथ मतलब लोगों में बांटते, पैकेज बना के दे देते। तो जहाँ जहाँ जैसे जैकबाबाद साइड के ऊपर कुछ 1-2 मरतबा फ्लड्स के ज़माने में हमने बांटे, इंटीरियर सिंध में बांटे, और इसी तरह रूपानी फाउंडेशन की तरफ से ये चीज़ें इन अ बिग वे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम पे की जाती है। बाकी जो रूटीन जो है वो तो ECD हमारा मेन है और मोबाइल व्हीकल से बहुत फ़ायदा हो। और साइमल्टेनियसली मैं कहूँगा किसी भी इलाके में अगर कोई ऐसा हमें जगह प्रोवाइड कर दे तो हम जो उनको स्कूल, कम्युनिटी की स्कूल बनाकर, ECD सेंटर बनाकर उनकी 2 टीचर्स को ट्रेन कर हम उनके हवाले कर देते। फिर वो आगे जाके फीस चार्ज करे, एक पैसा भी चार्ज ना करे, वो उसकी मर्जी है। हम उनको मॉनिटर करते रहेंगे, ये हमारी कोशिश। इस वक्त भी हम जैसे 3-4 जगह पे कराची में और बाकी गिलगित बल्तिस्तान में तो ज्यादातर हमारी स्कूल हम यही कोशिश करते हैं कि हम उनको पूरी बनाकर टीचर्स को ट्रेन करके हैंड ओवर कर देते हैं। फिर अपने इलाकों के हिसाब से कोई फीस चार्ज करता है, कोई 2-4 डोनर्स जमा करके कहते हैं कि हम अपना खर्चा संभाल लेंगे। खास जरूरत होती है 2 कमरों की, कि जहाँ पे हम, क्योंकि बच्चे जब आते हैं वो टॉडलर्स भी होता है, 1 साल का भी है, 2 साल का भी, तो उनको फिर हमें डिवाइड करना पड़ता है, अलग अलग बिठाना होता है, तो इसमें हमें आसानी होती है। तो यहाँ पे कराची में कोई भी अगर आता है
तो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर फरहान साहब बैठे हुए, इनसे कांटेक्ट करें तो हम कोशिश करके बहुत ही जल्दी उनको एक स्कूल बनाकर दे देते हैं माशाल्लाह। और उसमें फिर वो अपने हिसाब से ईसीडी को आगे डेवलप कर सकते हैं। शो पे आपको बुलाने का मकसद ही यही है कि अवेयरनेस और लोग जो कंट्रीब्यूट करना चाहें, डोनेशन देना चाहें, जगह देना चाहें और ऐसा मेरे ख्याल में करना चाहिए जो साहिब हैसियत हैं और जो कर सकते हैं, तो प्लीज हमारे साथ आएं और रूपाली फाउंडेशन के साथ कंट्रीब्यूट करें और जितनी बिल्कुल जी। और donation साथ दे साथ ये सकते हैं कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आप पैसे से मदद जी। करें, आप जगह से भी मदद कर सकते हैं। और इसी के साथ एक वक्फे के बाद वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। देखते रहिए नूर सहर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नूर सहर सहरी ट्रांसमिशन और हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ रखते हैं। और ज़ीशान आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि टाइम कैसे गुजर गया आयशा, पता नहीं चला। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, तोहफा देकर जा रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप दोबारा हमें ज़रूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आप जैसे लोगों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ना सिर्फ इसलिए ज़रूरत है कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं, बल्कि जब एक सरबरा, एक गाइडर साथ हो तो हमारी सिमत भी बेहतरीन होती चली जाती है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मेट्रो टीवी ने हमें टाइम मौका दिया कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर हम अपने ईसीडी प्रोग्राम के बारे में, रूपानी फाउंडेशन के बारे में हम आपसे मुखातिब हुए और कोशिश की कि लोगों तक ये हम प्रोग्राम आगे बढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। फरहान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे स्पॉन्सर रूपानी फाउंडेशन, जो कि यकम रमजान से लेकर 30 रमजान या 29 रमजान जितने भी होते हैं हमारे साथ मौजूद है। इसी के साथ